ہماری سیاسی روایات ہمیں اپنے دلوں افغان طالبان کا وفد آج دوحہ سے پاکستان آئے گا۔ افغان طالبان کا وفد وزارت خارجہ کی دعوت پر پاکستان آ رہا ہے۔ وفد کی قیادت ملا عبدالغنی برادر کو کر رہے ہیں۔ وفد افغان دھڑوں کے درمیان مفاہمتی عمل کے حوالے سے پاکستانی قیادت سے بات چیت کرے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے پاک چین وزرائے خارجہ کے مابین ہونے والے مذاکرات کے مشترکہ اعلامیے پر بھارتی بیان کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان کا بیان بلا جواز اور غیر ذمہ دارانہ ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ کی طرف سے جموں و کشمیر کو خود ساختہ اٹوٹ انگ قرار دینا مضحکہ خیز ہے۔ بھارتی بیان سلامتی کونسل کی قراردادوں اور تاریخی و قانونی حقائق کے برخلاف ہے۔ قومی احتساب بیورو نے بھی اپنی 2 سالہ کارکردگی جاری کر دی۔ ترجمان نیب نے بتایا کہ بلا امتیاز احتساب کو یقینی بنانے کے لیے کوششیں کی۔ 2 سال میں کی برسوں سے زیر التوا مقدمات کو نمٹایا گیا۔ 2 سال کے دوران 363 ارب روپے وصولی خزانے میں جمع کرائے ہیں۔ نیب ملک سے بدعنوانی کے خاتمے کے لیے مؤثر اور فعال اقدامات کر رہا ہے۔ ترجمان سندھ رینجرز نے کہا کہ پاکستان رینجرز سندھ کی باری سے متاثرہ خاندانوں کی خدمت کے لیے پیش ہے۔ پاکستان رینجرز نے مخیر حضرات کے تعاون سے یوسف گوٹ، رحیم گوٹ، بسم اللہ ٹاؤن اور سیکٹر بی کے علاقوں سے گزشتہ روز باری سے متاثرہ خاندانوں میں کھانا تقسیم کیا۔ رینجرز کی جانب سے کھانے کی تقسیم مختلف مقامات کے علاوہ ڈور ٹو ڈور بھی کی جا رہی ہے۔ کورونا وائرس کے حوالے سے نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول آپریشن سینٹر نے تازہ ترین اعداد و شمار جاری کر دیے۔ کورونا کا زور ٹوٹ گیا ہے اور کیسز اور اموات میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 496 نئے کیسز رپورٹ ہوئے جبکہ 9 اموات ہوئیں۔ اب تک 2,76,829 مریض صحتیاب بھی ہو چکے ہیں۔ پاکستان اور انگلینڈ کے مابین ساؤتھ ایپٹن میں کھیلے جانے والے تیسرے ٹیسٹ میچ میں گیند بازوں کے بعد بلے بازوں کی کارکردگی بھی مایوس کن رہی۔ کپتان اظہر علی نے اچھے کھیل کا مظاہرہ کیا اور 141 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے، تاہم ان کے علاوہ کوئی بیٹسمین جم کر نہ کھیل سکا اور پوری پاکستانی ٹیم 273 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ پاکستانی ٹیم کو فالو آن کا سامنا ہے۔ اور محکمہ موسمیات کے مطابق آج سندھ، جنوب مشرقی بلوچستان، شمال مشرقی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور ملحقہ علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سردار نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔
पाकिस्तान में एक नया मसला साथ लिए तुलू होता है और दिन इन्हीं मसाइल के हल के नजर हो जाता है। हमारी सियासी रवायात हमें अपने दिलो जान से अजीज है, मगर अब कोई इल्जाम नहीं, कोई बहस नहीं, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं, क्योंकि मैं रखता हूं सवाल का और मांगता हूं जवाब दलील के साथ। Viewers of Pakistan and the rest of the world, Ray Shams are bringing you a fantabulous and most dynamic program around the globe, which is full of legends, celebrities, politicians, current affairs, entertainment, sports, and much more. So stay tuned on your favorite TV channel, CNN. जब छाँव धूप में बदलेगी, जब गरीब के घर का चूल्हा बुझेगा, जब इंसाफ एक मुश्किल पहेली बन जाए, जब तालीम और रोजगार आम आदमी के लिए नायाब हो जाएगा, तब मेरे मुल्क के हर एक कोने से एक ही आवाज आएगी, ये तो होगा। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन, सरदार नदा दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाह अस्त हुसैन। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद।
پاکستان میں ایک نیا مسئلہ ساتھ لیے طلوع ہوتا ہے۔ اور دن انہی مسائل کے حل کے نظر ہو جاتے ہیں۔ ہماری سیاسی روایات ہمیں اپنے دل و جان سے عزیز ہے، مگر اب کوئی الزام نہیں، کوئی بحث نہیں، کوئی بریکنگ نیوز نہیں، کیونکہ میں رکھتا ہوں سوال کا اور مانگتا ہوں جواب دلیل کے ساتھ۔ Viewers of Pakistan and the rest of the world, Ray Shams are bringing you a fantabulous and most dynamic program around the globe, which is full of legends, celebrities, politicians, current affairs, entertainment, sports, and much more. So stay tuned on your favorite TV channel, CNN. جب چھاؤں دھوپ میں بدلے گی، جب غریب کے گھر کا چولہا بجھے گا، جب انصاف ایک مشکل پہیلی بن جائے، جب تعلیم اور روزگار عام آدمی کے لیے نایاب ہو جائے گا، تب میرے ملک کے ہر ایک کونے سے ایک ہی آواز آئے گی، یہ تو ہوگا۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سردار نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔
हर नया सूरज पाकिस्तान में एक नया मसला साथ लिए तुलू होता है और दिन इन्हीं मसाइल के हल के नजर हो जाता है। हमारी सियासी रवायात हमें अपने दिलो जान से अजीज है, मगर अब कोई इल्जाम नहीं, कोई बहस नहीं, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं, क्योंकि मैं रखता हूं सवाल का और मांगता हूं जवाब दलील के साथ। Viewers of Pakistan and the rest of the world, Ray Shams bringing you a fantabulous and most dynamic program around the globe, which is full of legends, celebrities, politicians, current affairs, entertainment, sports, and much more. So stay tuned on your favorite TV channel, CNN. जब छाँव धूप में बदलेगी, जब गरीब के घर का चूल्हा बुझेगा, जब इंसाफ एक मुश्किल पहेली बन जाए, जब तालीम और रोजगार आम आदमी के लिए नायाब हो जाएगा, तब मेरे मुल्क के हर एक कोने से एक ही आवाज आएगी, ये तो होगा। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन, सरदार नदा दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाह अस्त हुसैन। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद।
हर नया सूरज पाकिस्तान में एक नया मसला साथ लिए तुलू होता है और दिन इन्हीं मसाइल के हल के नजर हो जाता है। हमारी सियासी रवायात हमें अपने दिलो जान से अजीज है, मगर अब कोई इल्जाम नहीं, कोई बहस नहीं, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं, क्योंकि मैं रखता हूं सवाल का और मांगता हूं जवाब दलील के साथ। Viewers of Pakistan and the rest of the world, Ray Shams are bringing you a fantabulous and most dynamic program around the globe, which is full of legends, celebrities, politicians, current affairs, entertainment, sports, and much more. So stay tuned on your favorite TV channel, CNN. जब छाँव धूप में बदलेगी, जब गरीब के घर का चूल्हा बुझेगा, जब इंसाफ एक मुश्किल पहेली बन जाए, जब तालीम और रोजगार आम आदमी के लिए नायाब हो जाएगा, तब मेरे मुल्क के हर एक कोने से एक ही आवाज आएगी, ये तो होगा। अस्सलामुअलैकुम, JNN के साथ मैं हूं आकाशा यासीन। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आज की सबसे अहम खबर से आपको आगाह करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ट्विटर पैगाम, पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त रास्ते पर है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ट्वीट करते हुए बताया कि जुलाई 2019 में मुल्क का करंट अकाउंट खसारा $613 मिलियन था, जो जून 2020 में कम होकर $100 मिलियन पर आया और फिर जुलाई 2020 में हमारा करंट अकाउंट बैलेंस $424 मिलियन इजाफी हो गया है। उन्होंने कहा कि जबरदस्त तब्दीली बरामदात में मुसलसल बेहतरी, जो जून 2020 की निस्बत 20% ज्यादा रही और रिकॉर्ड तरसीलात ज़र का नतीजा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने पाक चीन वज़ीर खारजा डायलॉग के मुश्तरका एलामिया पर भारतीय बयान को मुस्तरद कर दिया है। भारतीय वज़ारत खारजा के तर्जुमान का बयान बिला जवाज और गैर जिम्मेदाराना है। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज चौधरी का कहना था कि भारतीय दावों की कोई बुनियाद नहीं, CPEC के खिलाफ भारतीय प्रोपेगेंडे को भी मुस्तरद करते हैं। भारत आलमी बरादरी को गुमराह करने के लिए मायूस कुन हद तक कोशिशें कर रहा है। भारत का इस इशू पर कोई तारीखी, कानूनी या इखलाकी जवाब नहीं है।
जबकि भारत के झूठे दावे हकायक नहीं झुटला सकते। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी को झुटलाया नहीं जा सकता। भारत कश्मीरी अवाम के बुनियादी हुकूक गस्ब किए हुए है। भारत अपनी बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियां पूरी करे, जबकि जम्मू कश्मीर के अवाम को सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत देना होगा। अफगान तालिबान का वफ्द पाकिस्तान के दौरे पर पहुंच गया। अफगान तालिबान के वफ्द को दौरे की दावत पाकिस्तान की वज़ारत खारजा ने दी थी। अफगान तालिबान का आला सतही वफ्द आज पाकिस्तान के दौरे पर पहुंच गया। अफगान तालिबान के वफ्द को दौरे की दावत वज़ारत खारजा ने दी थी। अफगान तालिबान का वफ्द दोहा से परवाज QR 632 के जरिए इस्लामाबाद पहुंचा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगान तालिबान का वफ्द अफगान मुफाहमती अमल को आगे बढ़ाने से मुतालिक बातचीत करेगा। पाकिस्तान के वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने एक हफ्ते कबल अफगानिस्तान के हवाले से कहा था कि जरूरत इस अमर की है कि तमाम फ्रीकेन मामूली नोयत के उमूर का हल यकीनी बनाएं। उनका कहना था कि अफगान अमन अमल से मुतालिक कामयाबी इज्तिमाई काविश के बायस मिली है और मौजूदा सूरत हाल तक आई है। एवन फील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, उनकी साहबजादी मरियम नवाज और दामाद कैप्टन सत्तर की अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच 1 सितंबर को केस की समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत के नवाज शरीफ, मरियम नवाज और सत्तर एवान की 10 साल, 7 साल और 1 साल कैद की सजा मुअत्तल कर दी थी। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ कौमी एहतसाब ब्यूरो की अपील को मुस्तरद करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सजा मुअत्तली को बरकरार रखा है। अल अजीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में सजा सुनाए जाने के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील भी 1 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। वज़ीर आज़म के मशीर बर एहतसाब और रिकवरी यूनिट मिर्जा शहजाद अकबर की तकरीरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। मिर्जा शहजाद अकबर की तकरीरी के खिलाफ सैयद परवेज ज़हूर एडवोकेट ने दरख्वास्त दायर की। नाजरीन, अहम खबर से आपको आगाह करते चलें। वज़ीर आज़म के मशीर बर एहतसाब और रिकवरी यूनिट मिर्जा शहजाद अकबर की तकरीरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। मिर्जा शहजाद अकबर की तकरीरी के खिलाफ सैयद परवेज ज़हूर एडवोकेट ने दरख्वास्त दायर की। इस बारे में मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, समाअत से मुतल्लिक आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल आकाशा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज वज़ीर आज़म के मशीर बर एहतसाब मिर्जा शहजाद अकबर की तकरीरी के खिलाफ चैलेंज किया गया है। इस तकरीरी को मिर्जा शहजाद अकबर की जो तकरीरी के खिलाफ दरख्वास्त दायर की है सैयद परवेज ज़हूर एडवोकेट ने दायर की है। उसके अलावा उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया दरख्वास्त में कि 22 जुलाई को मिर्जा शहजाद अकबर की तकरीरी दोबारा की गई, जिसका नोटिफिकेशन दोबारा से जारी किया गया, जो कि खिलाफ कानून है। और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फायज ईसा ने भी अपनी दरख्वास्त में मिर्जा शहजाद अकबर की तकरीरी पर सवालात उठाए थे और इस बात में कोई शक नहीं है कि मिर्जा शहजाद अकबर अपनी तकरीरी में सियासी असर व रसूख को इस्तेमाल कर रहे हैं। यह दरख्वास्त में कहा गया है। उसके अलावा कहा गया है कि आइन बिलाइन से तफरीक एहतसाब पर यकीन रखता है। अदालत वज़ीर आज़म के मशीर बर एहतसाब रिकवरी और एहतसाब मिर्जा शहजाद अकबर की जो तकरीरी है उसको कल अदम करार दे। और उसके अलावा इसमें दरख्वास्त में नैब और वज़ीर आज़म के चेयरमैन नैब मिर्जा शहजाद अकबर समेत कैबिनेट डिवीजन को भी इसमें फरीक बनाया गया है और जिस पर अदालत ने फरीकैन को आज नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। जी बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान तफसीलात से आगाह करने के लिए। गीजा रोड चक जलालुद्दीन के रहायशी मेन रोड पुली की तामीर पर काम 4 माह से गुजरने के बावजूद न होने की वजह से सरापा एहतजाज बन गए। पुली पर रास्ता तंग होने की वजह से मोटरसाइकिल सवार गिरने से जख्मी, 2 अमवात ने इलाके को सोगवार कर दिया। बच्चे और खवातीन भी नालालई में गिरकर जख्मी। इलाके के मसाइल पर रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे अदनान बरी। लाखों नफूस की आबादी पर मुश्तमिल गिरजा रोड चक जलालुद्दीन और गिरदनवा के इलाका मकीन अरसा 4 माह से महकमा सुई गैस और महकमा वापटा की गफलत और लापरवाही की वजह से शदीद तरीन अजियत का शिकार हो चुके हैं। पुल की तमीर के लिए इन लोगों को फंड भी मिले हैं, उसके बावजूद इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी गई।
साइड पे जो दीवार है वो ना होने के बराबर है। MNA खान सरवर खान और वजीर कानून राजा बशारत MPA वासिक क़य्यूम अब्बासी के रहम करम पर तकिया रखे इलाका मकीन इस पुली की तामीर न होने और सुई गैस और आइस्को का काम मुकम्मल न होने की वजह से परेशान। इसी पुली से गिर कर इलाका मोअज़्ज़ज़ बुजुर्ग और अदील नामी मासूम बच्चा भी जिंदगी की बाजी हार गया। यहाँ पे एक डंपर गिरा था, उसके पीछे मैं आ रहा था और मैं भी यहाँ पे गिर गया, और एक और हमारा अजीज है बच्चा था, वो भी यहाँ डंपर के नीचे आ गया, और कुछ एक और राहगीर गुजर रहा था, वो भी इस तरह उसके नीचे गिर गया है। हाँ, उसकी डेथ हो गई थी। यहाँ पे एक सीमेंट से भरा हुआ जो है ना वो ट्रक नीचे नाले में गिर गया है, उसमें तकरीबन 1500 बैग सीमेंट था और उसका ड्राइवर और कंडक्टर जख्मी हो गया है। चक जलालुद्दीन यूनियन कौंसिल 99 की इस पुली की तामीर न होने की वजह से आए रोज़ की लड़ाइयाँ रास्ता न होने की वजह से मामूल बन चुकी हैं। इलाका मकीन अपने मसाइल जल्द हल करने के लिए हुकूमत और ज़िम्मेदारों से काम जल्द मुकम्मल करने की अपील कर रहे हैं। हुकूमती ज़िम्मेदारान हुकूमत में आने से कबल वादे वईद तो बहुत करते हैं, लेकिन हुकूमत की ये मजबूरियाँ समझ से बालातर हैं कि वो इलेक्शन जीतने और हुकूमतें बनाने के बाद आवाम के मसाइल से नजरें क्यों फेर लेते हैं और इलाकाई मसाइल की तरजीहात उनके मकासद का हिस्सा क्यों नहीं रहती। ये आवाम के लिए अजियत तो है, लेकिन आने वाले इलेक्शन में गौर तलब सवालिया निशान भी है। गिरजा रोड चक जलालुद्दीन के रिहायशी पुली ना बनने और बापडा और महकमा सुई गैस की गफलत की वजह से सरापाए एहतजाज हैं। इनके मसाइल का हल न होना इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन मलक सरफराज के साथ चौधरी अदनान बरी, JNN रावलपिंडी। लाखों बिजली चोरों के खिलाफ आइस्को की कार्रवाइयां तेज। रवां माह में चेकिंग के दौरान 1585 मशकूक मीटर्स पकड़े गए। 41 अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां, जबकि 3 करोड़ से जायद किए गए जुर्माने भी हैं। बिजली चोरों के खिलाफ आइस्को ने कार्रवाइयां तेज कर दी। आइस्को ने 500 सर्कल्स में बिजली चोरी के खात्मे के लिए बिला इम्तियाज कार्रवाइयां शुरू कर दी गई। रवामा चेकिंग के दौरान 1585 बिजली के मशकूक कनेक्शंस पकड़े गए। 1521 मीटर्स स्लो पाए गए, जबकि बिजली की बराह रास्त सप्लाई इस्तेमाल करने वाले 41 अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां की गई। 5 मीटरों में सुराख, 18 मीटरों को टम्पर करके बिजली चोरी करने वाले वाकयात भी सामने आए। मुताल्लिका सार्फिन को 3 करोड़ से जायद के जुर्माने आयद किए गए। बिजली चोरी में मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए मुताल्लिका थानों में दरखास्तें भी जमा करवा दी गई। आइस्को चीफ ने कहा कि आइस्को रीजन के तमाम इलाकों को बिजली चोरी से पाक करना मिशन है। बिजली चोरी और मावनत देने वाले आइस्को मुलाजमीन की इत्तला भी जारी करदा खुफिया नंबर्स पर दी जा सकती है। इस्लामाबाद से आम खबर शामिल करते हुए आपको बताते चले, इस्लामाबाद में मुहर्रम उल हराम के सिलसिला में सिक्योरिटी के सख्त इक़दामात। सिक्योरिटी को मजीद मौसर बनाने के लिए इस्लामाबाद पुलिस ने एडिशनल SP फरहत अब्बास काज़मी की क़यादत में फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च की तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे उस्मान मुगल। जी उस्मान, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में मुहर्रम उल हराम के हवाले से सिक्योरिटी के सख्त तरीन जो इंतजाम है वो मुकम्मल कर लिए गए और इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से फ्लैग मार्च जो वो इनका किया गया और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से शुरू होकर जो ये फ्लैग मार्च इस्लामाबाद के मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ जो दोबारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो पहुंच कर इख्तिताम पजीर हुआ। और इस दौरान जो वो फ्लैग मार्च के अंदर जो वो ऑपरेशन डिवीजन, स्पेशल ब्रांच, CTD और ट्रैफिक पुलिस और जिला इंतजामिया के अफसरान जो वो भी शरीक थी। और फ्लैग मार्च के दौरान इमाम बारगाहों के इर्द गिर्द एरिया जो उनकी सर्चिंग भी जो वो की गई है। और इस्लामाबाद के अंदर जो मुहर्रम उल हराम के दौरान मजालिस और जुलूसों के लिए मौसर सिक्योरिटी इंतजाम को यकीनी बनाने की जो वो हदायत भी की गई है। और इस हवाले से जो वो इस्लामाबाद पुलिस ने अपने जवानों की तमाम तर तबादले और छुट्टियां जो वो 12 मुहर्रम उल हराम तक जो वो मनसूख कर दी हैं। जी बहुत शुक्रिया उस्मान मुगल, तफसीलात से आगाह करने के लिए। हमारे नुमाइंदे उस्मान मुगल हमें फ्लैग मार्च से आगाह कर रहे थे। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास 2 रोज के वक्फे के बाद आज होने जा रहे हैं। इजलास में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ समेत अहम उमूर पर गर्मा गर्म बहस का इम्कान है। कौमी असम्बली का इजलास 4 बजे, जबकि सेनेट का अहम इजलास 5 बजे तलब किया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे शहजाद मिर्जा। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास 2 रोज के वक्फे के बाद आज होने जा रहे हैं। इजलास में अहम उमूर पर गर्मा गर्म बहस का इम्कान भी है। इजलास में कानून साजी के अलावा नए बिल और तहारीक भी पेश किए जाएंगे, जबकि ऐवान में नवाज शरीफ की वापसी समेत दीगर अहम उमूर पर भी गर्मा गर्म बहस का इम्कान है। ऐवान बाला के इजलास में आज प्राइवेट मेंबर डे है, जिसमें 38 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। इजलास में कानून साजी के अलावा नए बिल और तहारीक भी पेश की जाएंगी। कौमी असम्बली के इजलास का
का 24 नुकाती एजेंडा जारी किया गया है। इजलास में तालीम, दिफा, कानून, इंसाफ, कामर्स, हाउसिंग, प्लानिंग और दाखिला की कायमा कमेटियों की रिपोर्ट भी ऐवान में पेश की जाएगी। कौमी असम्बली इजलास में कानून साजी के अलावा तहारीक भी कौमी असम्बली में पेश की जाएंगी। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 4 बजे जबकि सेनेट का इजलास आज शाम 5 बजे तलब किया गया है। दावत इस्लामी अलीपुर जिला मुजफ्फरगढ़ की जानिब से एक रोजा ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया है। तफसीलात के मुताबिक दावत इस्लामी अलीपुर की जानिब से ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद रज़ा इलाही और दोयम फी सबीलिल्लाह थैलेसीमिया के मरीजों की मदद है। अलीपुर गैर सियासी आलमगीर तहरीक दावत इस्लामी के तहत एक रोजा ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें शहर के मौजूदीन समेत सियासी और गैर सियासी शख्सियात ने खुले दिल से ब्लड डोनेट किया। अवाम का कहना है कि इससे बहुत सी जरूरतमंद अफराद की मदद होगी। थैलेसीमिया के मरीजों ने ब्लड कलेक्शन टीम का शुक्रिया अदा करते हुए उनकी इस काविश को सराहा है। बहावलपुर मोटरवे रोड पर मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर ट्रॉली में तसादुम हुआ है। तसादुम के नतीजे में मासूम 1 साल का बच्चा ट्रॉली के नीचे आके मौका पर ही दम तोड़ गया। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे से। जी बिल्कुल, बहावलपुर के नवाई इलाका पक्की पुल के करीब मोटरवे पुलिस ने नाकाबंदी लगा रखी थी। एक फैमिली जो कि मोटरसाइकिल पर सवार थी, जिसमें 2 बच्चे, एक मर्द और 2 खवातीन भी थी, जो कि हॉस्पिटल के इलाज के लिए जा रहे थे। ट्रैफिक पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं रुके तो मुतासिर कहना है कि पुलिस ने मेरे बाजू से पकड़कर रोकने की कोशिश की, के नतीजे में मोटर फिसल गया, हम सब नीचे गिर गए और हमारा एक बहुत शुक्रिया बुलेटिन में मजीद खबरें शामिल करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन, सरदार नदा दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाह अस्त हुसैन। हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। सूरज पाकिस्तान में एक नया मसला साथ लिए तुलू होता है और दिन इन्हीं मसाइल के हल के नजर हो जाता है। हमारी सियासी रवायात हमें अपने दिलो जान से अजीज है, मगर अब कोई इल्जाम नहीं, कोई बहस नहीं,
कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं, क्योंकि मैं रखता हूं सवाल का और मांगता हूं जवाब दलील के साथ। Viewers of Pakistan and the rest of the world, Ray Shams are bringing you a fantabulous and most dynamic program around the globe, which is full of legends, celebrities, politicians, current affairs, entertainment, sports, and much more. So stay tuned on your favorite TV channel, CNN. जब छाँव धूप में बदलेगी, जब गरीब के घर का चूल्हा बुझेगा, जब इंसाफ एक मुश्किल पहेली बन जाए, जब तालीम और रोजगार आम आदमी के लिए नायाब हो जाएगा, तब मेरे मुल्क के हर एक कोने से एक ही आवाज आएगी, ये तो होगा। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन, सरदार नदा दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाह अस्त हुसैन। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद।
सूरज पाकिस्तान में एक नया मसला साथ लिए तुलू होता है और दिन इन्हीं मसाइल के हल के नजर हो जाता है। हमारी सियासी रवायात हमें अपने दिलो जान से अजीज है, मगर अब कोई इल्जाम नहीं, कोई बहस नहीं, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं, क्योंकि मैं रखता हूं सवाल का और मांगता हूं जवाब दलील के साथ। Viewers of Pakistan and the rest of the world, Ray Shams are bringing you a fantabulous and most dynamic program around the globe, which is full of legends, celebrities, politicians, वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करते चलें। सूबाई वजीर मवासलात और तामीरात मीर मोहम्मद आरिफ मोहम्मद हसनी के घर के बाहर फायरिंग का वाकया पेश आया है। फायरिंग के बायस एक पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हो गया। नाजरीन, ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करते चले। सूबाई वजीर मवासलात और तामीरात मीर मोहम्मद आरिफ मोहम्मद हसनी के घर के बाहर फायरिंग का वाकया पेश आया है। फायरिंग के बायस एक पुलिस एहलकार जख्मी हो गया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे महबूब अली से। जी महबूब अली, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी, गुज़िश्ता शब तालबंदी में सूबाई वजीर मवासलात और तामीरात मीर मोहम्मद आरिफ मोहम्मद हसनी और साबिक वफाकी वजीर सरदार फतेह मोहम्मद हसनी की रिहाइशगाह पर नामालूम अफराद की फायरिंग से ड्यूटी पर मामूद पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हुआ। फायरिंग करने वाले नामालूम अफराद रात की तारीकी का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस और लेडीज की जानिब से मुख्तलिफ जगहों पर छापा, अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। इस नाखुशगवार वाक़े की जो मजम्मत में चेयरमैन सैनिक आज फारिक संजरानी, अभी जाबिद रेखी और मीर इजाज खान संजरानी ने और दिगर इलाके के मुतबरीन ने इस नाखुशगवार वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। जी, बहुत शुक्रिया महबूब अली तफसीलात से आगाह करने के लिए। खानपुर से आम खबर शामिल करते हुए आपको बताते चले, खानपुर बासर अफराद ने सरकारी सोलिंग पर दीवार खड़ी करके रास्ता बंद कर दिया, जिससे मस्जिद और स्कूल का रास्ता भी बंद हो गया है। बासर अफराद की जानिब से अहले इलाका को धमकियां दी जा रही हैं, जिस पर अहले इलाका सरापा एहतजाज हैं। खानपुर अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए बताया कि अरसा दराज से चलने वाली सरकारी रास्ता जो कि बासर अफराद जाम खलील अहमद खान मोहम्मद ने अपने साथियों के हमरा दीवार खड़ी करके बंद कर दिया है, जबकि सोलिंग की ईंटें भी उखाड़ कर जमा करके रखी हैं। सरकारी रास्ता अरसा 20 साल से चल रहा था और इसी रास्ते पर मस्जिद आने जाने का रास्ता भी है। रास्ता बंद होने की वजह से नमाजी को शदीद दुश्वारी का सामना है और आने जाने के लिए दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ता है, जो कि बहुत तवील है। अहले इलाका ने डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान और असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर से फौरी नोटिस लेने की अपील की है। मातलेकेटी के मोहल्ले के रहायशी 15 साला नौजवान इरफानुल्लाह ने खुदकुशी कर ली है। मोबाइल जो कि किस्तों पर लिया गया था, उसकी किस्त जमा न करने सकने की वजह से खुदकुशी की गई है। नौजवान इरफानुल्लाह चांग ने 2000 की किस्त पर नया मोबाइल लिया। मोबाइल की किस्त न होने पर खुदकुशी की, जबकि इरफानुल्लाह के चाचा ने अपना मौकफ देते हुए कहा कि हमने दुकानदार को मना किया था कि हमारे नौजवान को मोबाइल किस्त पर ना दिया जाए, फिर भी दुकानदार ने मोबाइल किस्त पर दे दिया और जब नौजवान किस्त न जमा करवा सका तो दुकानदार ने नौजवान को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, जिससे नौजवान ने शदीद दबाव में आकर खुदकुशी कर ली। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि ताहाल मुकदमा दर्ज न हो सका। महकमा सेहत ने मुहर्रम के हवाले से पंजाब के सरकारी अस्पतालों को अलर्ट कर दिया। पैरा मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, नर्सिस और दीगर अमला की छुट्टियां मनसूख कर दी गई। तमाम टीचिंग अस्पतालों की इंतजामिया को गैर जरूरी इक़दामात मुकम्मल रखने की हदायत की गई हैं। जान बचाने वाली अद्वियात समेत ऑपरेशन थिएटर्स को मुकम्मल फाल रखने और अस्पतालों के शोबा इमरजेंसी के मुलाजमीन को 10वीं मुहर्रम तक अलर्ट रहने की हदायत की गई है। 9वीं और 10वीं मुहर्रम को अस्पतालों की इमरजेंसी में इजाफी अमले की ड्यूटी को यकीनी बनाने की हदायत भी की गई हैं। जंजीर जनी करने वालों को फौरी तिबी इमदाद देने के लिए अद्वियात का वाफर स्टॉक भी रखने का कहा गया है।
ओकाड़ा कबूतर बाजियाब करवाना पुलिस एहलकारों को महंगा पड़ गया। थाना शाहभूर पुलिस एहलकार ने कबूतर बाजियाब करवाने के लिए रेड की, जिस पर अहले इलाका ने पुलिस पर धावा बोल दिया और पुलिस पार्टी को तशद्दुद का निशाना बना डाला। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा JNN राना मोहम्मद सलीम से। जी राना मोहम्मद सलीम, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये ओकाड़ा के नवाही गाँव फोरेल इलाका थाना शाहभूर का वाक़या है, जहां नासिर महमूद नामी शख्स ने थाना शाहभूर में कबूतर चोरी की FIR मुल्जमान आसफ, काशफ और असलम के खिलाफ वारद की थी। पुलिस एहलकारों ने कबूतर बाजियाब करवाने के लिए मुल्जमान के घर रेड किया। मुल्जमान और अहले इलाका आपे से बाहर हो गए और पुलिस एहलकारों पर मुक्कों और थप्पड़ों की बारिश कर दी, जिसकी फुटेज JNN न्यूज ने हासिल कर ली। फुटेज में वाज़ेह देखा जा सकता है कि किस तरह अहले इलाका पुलिस एहलकारों को गालम गोच और उनकी दुर्गत बना रहे हैं। इस हवाले से जब हमारी SHO थाना शाहभूर से बात हुई तो उसका मामले को दबाते हुए कहना था कि मुल्जमान से मामूली तलब कलामी हुई है, जो बाद में रफा दफा हो गई है। जी बहुत शुक्रिया राना मोहम्मद सलीम तफसीलात से आगाह करने के लिए। ओकाड़ा से खबर शामिल करेंगे। ओकाड़ा के नवाही गांव में गरीब औरत की बेटियों के साथ जुल्म और बर्बरियत की इंतहा हो गई। मुल्जिमान ने चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को भी पामाल करते हुए तशद्दुद का निशाना बना डाला। ओकाड़ा के नवाही गांव शहनवाल में मुल्जिमान रात को गरीब खातून बशीरा बीबी के घर चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करते हुए दीवार फलांग कर दाखिल हो गए। मुल्जिमान ने घर का सामान भी लूटा और साइला की बेटियों से जबरदस्ती भी की। मुतासा खानदान के शोरगुल और चीखों पुकार सुनकर अहले इलाका मौका पर आ गए, जिन्होंने मुल्जिमान से औरतों की जान बचाई। बशीरा बीबी थाना हुजरा शाह मुकीम में गई, मगर पुलिस ने इसकी एक ना सुनी, क्योंकि मुल्जिमान बाअसर और ताकतवर हैं। मजलूम बशीरा बीबी का वज़ीर आला पंजाब, DPO ओकाड़ा उमर सईद मलिक और अरबाब इख्तियार से मुतालबा है कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए। मुल्जिमान से जान और इज्जत का खतरा है। कसूर से आम खबर शामिल करेंगे। कसूर नवाही गांव लधे के खतियार में डंडा बरादर दर्जनों अफराद की जानिब से मेहनत कश के घर पर धावा बोल दिया गया। गरीब मेहनत कश शौकत कम्हार के जेर तामीर मकान की दीवारें गिरा दी गई थी। तफसीलात के मुताबिक दर्जनों अफराद ने मेहनत कश शौकत कम्हार के जेर तामीर मकान की दीवारें गिरा दी हैं। JNN न्यूज ने मेहनत कश के घर पर हमला और दीवारें गिराने की वीडियो हासिल कर ली है। वीडियो में शवश बेग, रफीक लोहार और दीगर अफराद को शौकत कम्हार के घर की दीवारें गिराते देखा जा सकता है। मुल्जिमान ने नाले की 5 फीट जगह न छोड़ने की पादाश में मेहनत कश के घर की दीवारें गिराई और तशद्दुद किया, जबकि थाना सदर में दरखास्त के बावजूद मुकदमा दर्ज न होने पर शौकत कम्हार और इसके अहले खाना ने एहतजाज किया है। अहले खाना का कहना है कि तमाम सबूत होने के बावजूद पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, जबकि गिरफ्तार अफराद भी छोड़ दिए गए। आला हुकाम नोटिस लेकर इंसाफ दिलवाएं। सादकाबाद थाना अहमदपुर पुलिस ने कातिल के मुल्जिम निजामुद्दीन को कंध कोट से गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम ने 1 माह पहले बलोच कॉलोनी अहमदपुर में अपनी बहन को कारोकरी के इल्जाम में नाहक फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। सादकाबाद थाना अहमदपुर पुलिस ने कत्ल के मुल्जिम निजामुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम निजामुद्दीन ने 1 माह पहले बलोच कॉलोनी अहमदपुर में अपने भाई नूर हसन के हमरा अपनी सगी बहन को कारोकरी के इल्जाम में बेदर्दी से गोलियां मारकर कत्ल किया था और कत्ल के बाद मुल्जिमान असलहा लहराते हुए मौका से फरार हो गए थे। थाना अहमदपुर पुलिस की जानिब से शोहर की मदयत में मुकदमा दर्ज किया गया। सब इंस्पेक्टर मंजूर अहमद भट्टा ने 1 माह में मुल्जिम को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के जंगलात में लगी आग रियासी तारीख की दूसरी बदतरीन आग करार दे दी गई। 2 दर्जन से ज्यादा मकामात पर लगी आग से 700 के करीब इमारतें जलकर खाकस्तर हो गई। खबर साझेदारी के मुताबिक आग 10 लाख एकड़ अराजी तक फैल चुकी है, जबकि तेज हवा की वजह से आग पर काबू पाने में ताहाल मुश्किलात का सामना है। 14,000 फायर फाइटर्स 1 हफ्ते से जंगलात में 2 दर्जन से ज्यादा मकामात पर लगी आग बुझाने में मसरूफ हैं। आग बुझाने के लिए हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर्स की मदद भी ली जा रही है, जबकि दूसरी जानिब आग से 700 से ज्यादा इमारतें तबाह हो चुकी हैं और हजारों अफराद इनखला पर मौजूद हो गए हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए हमारे साथ रहिए और देखते रहिए JNN न्यूज।